students, good morning. Welcome to Sagar College of Science. So pila mane bhalo acho? Okay. So today we will start with stanza 7. We have completed 4 5 1 2 3 4 5 6. So eta hochi stanza 7 ru arambho kariba. So first I will read the poem. Okay. Mavron, Mavron, the man is died. While I slept on the chair, he roused his horse out of his sleep and rode with little care. He rode now as he never rode by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again. Okay. So टिके मने पके दवा यार जो स्टैंजा को आसीबा पूर्वरो द लास्ट क्लास कौन थिला ना जो 4 5 6 रे जो he woke up from his sleep. Suddenly he woke up from his sleep and stood upright the floor and remembered about the poor man of the evening. Okay, then how he reacted in stanza 7, let's see. Mavron, Mavron, the man is dies. What is the meaning of Mavron? What is Mavron? Mavron means it indicates the expression of language of Irish. It indicates the Irish language जोटा कि expression टा यार माने कौन the cry of grief, cry in grief माने कौन जो cry in grief टा एटा को language रे it indicates Irish language रे जो कांदीबा टा को cry in grief जोटा जंत्रणा रे कांदीबा को Irish language रे Mavron बोली कहा जाए एटा टिके ये कर दूची ना Irish language of Irish जोटा को भी आपको कहा जाए कौन ना Mavron टा को भी Alash जोटा दुख रे कहिबा Alash sorrow. Okay, ये जो Mavron टा ला cry in grief of Irish language और Alash और sorrow दुख रे कांदीबा जोटा. Okay, Mavron, the man has died. While I slept on the chair. So suddenly he woke up from his sleep and stood upright the floor. Then he cried and said, while he slept on the chair, at that time the man has died. तो सेटा जो कांदी के कहले कि जेमती को आमे जो कांदी को कि ओ माय गॉड से लोकटा मरी गला कि सेटा जो दुख रे कहिसंती जे Mavron, the man has died while I slept on the chair. जोड़ा ता माने कौन the evening जोड़े के poor man sent a message to call Father Gilligan, but he prayed and knelt and leaning on the chair and he fell asleep, right? मने पकेलो छ हमन टिके तो सेठी जो से सोई पड़थिले सेति बेले से उठी कहउचंती हे भगवान the man is died while I fell asleep. Then he feels really guilty. से मन भितर गिल्टी माने कौन से निज को दोषी बोली मानछन. he felt guilty and he didn't do his duty. तांकर से ड्यूटी करि पानथि. what is his duty? तांकर ड्यूटी कौन थिला to serve the poor people or the sick men. तांकर as a priest तांकर ड्यूटी थिला जे समान को सेवा करिया, but he didn't do his duty. That's why he felt guilty himself. तांकर he repented से अनुताप करछन्ती why जो से काहे की सोई पड़िथिले, right? Then he roused his horse out of his sleep and rode with little care. Then he roused means awakened. Each side रे लिख दूचे इटी जागा नहीं इटी roused means awakened. Awakened माने कौन ना उठेबा. Okay, he roused his horse out of his sleep. He rode with little care. Then से तो उठी चंदी then मने पकी चंदी. Then he roused his horse. He awakened his horse out of its sleep and he rode as fast as possible without any care. So सी तो ताको घोड़ा को उठै चंती आउ से एते जोर रे एते फास्ट रे जाई चंती जे he rode with little care माने without any care. ताकर केयर नाही जे जत्नशील नाहंती जे से एते स्पीड रे घोड़ा चढ़ी के जाई चंती कोन पई ना he rode as fast as possible to reach the sick man's house. तो से केमिति जाई कि से sick man रो घरे पहुंचीबे. So he roused his horse out of his sleep and rode with little care. Understood? तो एठी कोन ना से दुख रे कांदी थिले तांकर जेतळे से चेयर रे सुई पड़िथिले हठात की उठी कांदेले जे से लोकटा मरि जाई छि कि देन से तांकर घोड़ा को उठै छंती आउ बहुत द्रुत गति रे जाई छंती जेमिति कि तांकर बिना जत्न रे जत्नशील न हेई जे एते स्पीड रे से जाई छंती काहे कि ना सिकमेंट घरे से असुस्थ लोकर घरे पहुंचीबा पाई. देन कम टू स्टांजा 8. एटा हला स्टांजा 8.
Stanza 8. He rode now as he never rode by rocky lane and fen. He rode now as he never rode. Means जो सी एमिति भाबरे घोड़ा चढ़ी थिले जेमिति कि से आगरु केबे चढ़ी नथले. Means he rode so fast. जो never rode means he rode so fast. बहुत द्रुत गति रे से घोड़ा चढ़ी की जाइथिले. By rocky lane and fen. ए जो lane and fen ए जो लिएटा by rocky lane and fen, it indicates that the setup of the poem is in countryside. जे एटा गोटे countryside रो जोटा कि lane and fen means कोन ना narrow and marshy land. यार माने कोन lane and fen means जोटा narrow road and marshy land. Okay, so ये जो word था, this word indicates the setup of the poem is in countryside. So he rode now, so he rode so fast as possible by the narrow road and marshy land. तो सी एते जोर घोड़ा चढ़ी की जाइचंती से अणउसाड़िया पथरिया और संतसंतिया रास्ता दे. मार्शी लैंड माने कोन एठी भी तुमे करि परिबो कोन ना वेटलैंड जो उदा ये जो संतसंतिया रास्ता दे की से जाइचंती. The sick man's wife opened the door. Father, you come again. तो ये जो देइछि देखो जोटा देइछि एठी जो आश्चर्य होबा जे एक्सक्लेमेशन मार्क देइछि एठी जेटा जे the sick man's wife opened the door. तो when he reached there, जेतल जाई कि से पहुंची चंती सेठी, then the sick man's wife opened the door. सेठु से कबाट खोली चंती and said, Father, you come again. ए जो वर्ड टा काहे की देला. फादर सेठी तो जाई नथिले बट से काहे की एटी फादर यू कम अगेन देछि. सो हियर मन जेतल से कबाट खोलिले द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर एंड विथ एस्टोनिशमेंट he asked Peter Gilligan, Father, you come again. से बहुत आश्चर्यर सहित पचारले जे फादर एटी आउ थरे आछंदी. Means she was really surprised to see Father Gilligan again. So here again माने कोन आमे तो पूर्वरु जेति के आमे पोएम पढि सारछु again रो कोन माने से जिबार कोठी भी नाही but again एटी काहे की वर्ड यूज करा गला. So this word creates really a confusion in your mind. तो माइंड रे निश्चित भाव से कंफ्यूजन क्रिएट करतो. एंड आल्सो दिस अगेन आल्सो क्रिएट ए कंफ्यूजन to Father Gilligan's mind. In Father Gilligan's mind also it create a confusion that why the sick man's wife told him, Father, you come again. तांकर भी संदेह आसिला जे से काहे की जे तांको सिक मैन रो स्त्री पचारले जे तुमे आउ थरे आछो जे फादर आउ थरे आछिछंती. तो एठी जोटा जे तांकर वाइफ पचारले जे रोड नाउ ही एज ही नेवर रोड से जाई कि सेठी पहुंचिले से जो अणउसारिया रास्ता दे कि देन से असुस्थ लोकर स्त्री कबाट खोलिले एवं तांको पचारिले जे फादर आपण आउ थरे आछंती. आश्चर्यर सहित पचारले ता माने से जस्ट किछि टाइम पूर्वरु से चली जाइछंती वेंट पुणी से काहे की कम बैक से काहे की फेरी के आछंती. तो तांकर स्त्री सेटा जो सिकमेन रो वाइफ सेटा को पचाइछंती. बट एठी पीटर गिलिगन वाज रियली सरप्राइज्ड टू हियर दैट वर्ड फादर यू कम अगेन. एंड आल्सो आई फील स्टूडेंट्स तुम मान को मध्य यू आर आल्सो द दिस वर्ड क्रिएट्स ए कंफ्यूजन इन योर माइंड. आई थिंक मु भाबुची कि तमर भी मध्य एटा कंफ्यूजन लागुथिबो जे से काहे की सेठी आउ थरे अगेन वर्ड यूज करले. बट आई विल क्लियर द कंफ्यूजन इन द नेक्स्ट स्टैंजा, राइट. बट एति की जाना इट हियर इट इज अ मिरेकल जैसे आसिनांती बट से काहे की आउ थरे अगेन वर्ड रो यूज करिछंती. क्लियर. तो आउ थरे हम देखि दबा जे एठी तो किछि तो हमर डिफिकल्ट वर्ड नाही. तो एठी जोटा मेभ्रन तो कहि देछि. देन व्हाइल आई स्लीप रो पास्ट टेंस हला स्लेप्ट. रोड राउज्ड मीन्स awakened मीन्स कोन उठेबा निदर उठेबा. देन रोड मीन्स राइड रो पास्ट टेंस रोड. आ रॉकी मीन्स कोन पथुरिया. लेन एंड फैन मीन्स नैरो रोड एंड मार्शी लैंड. बस एति की तार अछि डिफिकल्ट वर्ड. देन कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Stanza number 9. First I will read the poem, read the stanza.
And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. So the last stanza, he was surprised to hear that Father, you come again. Then Peter Gilligan asked in this stanza, and is the poor man dead? He cried. He cried and asked the sick man's wife that is the poor man dead? से कांदिले आउ से असुस्थ लोकर स्त्री को पचारिले जे से जो गरीब से जो लोकटा कोन मरि जाइछि कि he died an hour ago. ए जो दीटा देखो एठी इम्पोर्टेंट कमेंट माने एटा जनकर स्टेटमेंट अछि जे एटा गोटे जनकर स्टेटमेंट अछि एटा अछि तो एटा गोटे जनकर स्टेटमेंट अछि तो दीटा जाको एटा होछि कहार एटा कहार क्वेश्चन पचरा हिछि ना एटा पचारचंती के पीटर गेलिगन asked that he cried and he asked the sick man's wife that is the poor man dead se mori jaychanti ki then the sick man's wife answered that he died an hour ago, right? तो जेतों से पचन when he asked that is the poor man dead, then the sick man's wife answered and conveyed to the priest that he died an hour ago. The sick man's wife conveyed about the sick man's death to the priest. से जो सिक मैन असुस्थ लोकर स्त्री तांकु कहिले जे सी गोटे घंटा पूर्वर ही डायड एन आवर एगो गोटे घंटा पूर्वर तांकर मृत्युवरण हेछि से मरि जाइछंती. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. तो by hearing that जेतल से सुनिले जे जो मरि जाइछंती the old priest Peter Gilligan in grief माने कोन मु कहितली said sway to and fro. ए जो to and fro is a phrase. या माने कोन ना move backward and forward. या माने कोन to and fro रो to move backward and फॉरवर्ड. ता माने कोन कहलो जेमति कि ए जो तुमर गोटे थिला डैफोडिल्स रो जो टू एंड फ्रो माने दोहली जिबा ता माने देखिबे तो सडनली गोटे कथा सुनी दबा सडनली कि जोटे कि अनएक्सपेक्टेड थिबो तो टिके जो एपोर्ट सेपोर्ट हे जिबा तो सेटा कोइ चंदे मूव टू एंड फ्रो इट इज अ फ्रेज जोटा कि टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो जेतबेले when he wanted to know that the sick man was dead जेतबेले से मरि जाइथिले then he suddenly Peter Gilligan in sad become sad and felt sad and swayed to and fro and he and to move backward and forward means here this expression means that he filled with repentance. तो Peter Gilligan here filled with repentance जे सी अनुताप कले जे सी टिके दुखरे दोहली गले सुनी कि जे से जो लोकटा व्हेन ही फेल एस्लीप जेतो से सोई पड़थिले एंड द पोर मैन डेड से मरि जाइथिले तो बाय हियरिंग दैट ही फील विथ रिपेंटेंस. ओके सो एठी देखा उतरे जेतबेले से जे कि पहुंचले सेठी then he asked the sick man's wife that the poor man dead is the poor man dead. Then he wanted to know that when the sick man's wife conveyed about the death of the sick man before an hour ago जेतल गोटे घंटा पूर्वरु से जानिबा को जणैले ताको कन्वर्ट माने कोन जणैबा जे जणैले से गोटे घंटा पूर्वरु मरि जाइछंती. Then the old priest Peter Gilligan एटा को सुनी कि से जो वृद्ध क्रांत पाद्री पीटर गिलिगन इन ग्रीफ दुखरे सी टिके दोहली गले आउ से अनुताप कले कहीं ना जिते से सोई पड़ते बट से लोकटा मरी जाते मीन्स ही डिडंट डू हिज ड्यूटी से तांकर ड्यूटी करि नथिले दैट्स व्हाई तांकर अनुताप हेतिला जे रिपेंटेंस करथले जे से अनुताप करथले जे से काहे कि ताको अटेंड करि पारिले नाही. क्लियर. तो एठी जानिया को पाइले कोन से जो अगेन टा जोटा थिला कि जे फादर यू कम अगेन तो एते पर्यंत तुमे कंफ्यूजन रे अछ जे से फादर कम अगेन काहे कि कहले बट एठी भी से कहउचंती जे से मरि गले से मरि जाइछंती माने कोन से माने अकॉर्डिंग टू पीटर गिलिगन ही डिडंट डू हिज ड्यूटी बट द सिक मैन's wife told that father you come again. एटी सिकमेंट कहउचन जे आछंती ता माने पीटर गिलिगन जानि परछन ताको ड्यूटी आउ के करिछि कि बट एठी सब गुडा का कंफ्यूजन अछि. तो आई विल क्लियर द कंफ्यूजन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके
तो एटा तो किसी डिफिकल्ट वर्ड ना यहाँ आउ तार जमीका कही जे यार टिके नोट लिखिदेव सर्ट्रे जो स्टांजाटा बुझी निजे लिखिले से मन रही मुझे बुझे दूसरी मे बी इट्स इजी फॉर यू बट जो तुम देख निजे जो पोएमटा पढ़ु जो निजे एक्सप्लेन करने को चाहूँ से तुम मन में सडनली आसेनि तो यहाँ को टिके ब्रीफली तुम जो नोट्रे लिखिदेव इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ओके सो आज ये नेक्स्ट क्लास आम कंटिन्यू करबा स्टांजा 10, 11, 12 जोटा कि आमर लास्ट स्टांजा और लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम ओके थैंक यू गुड बाय एंड टेक केयर।